Hello all. In first part of theory of elastic failure, I have discussed three problems. Now and all the formulae we have to use in theory of elastic failure I have discussed. Now see the question number 4. According to maximum shear stress theory, determine the diameter of a bolt which is subjected to an axial pull force. Here axial pull is given to you. Axial pull means what? P is given to you. Value of P is 9 kilonewton, 9,000 Newton. Now shear force is also given to you. It is a 4.5 kilonewton, means 4,500 Newton. Now SYT, elastic limit in tension, it is 225 Newton per mm square. Factor of safety is 3. Factor of safety is given 3. Now first of all calculate normal stress sigma equal to P upon A. 9,000 divided by shear force tau equal to S upon A. S value is 4,500 divided by A, and sigma 1 2, it is sigma by 2 plus minus under root sigma by 2 whole square plus tau square. Sigma by 2 means 9,000 divided by 2A plus minus under root 9,000 divided by 2A to the whole square. सिग्मा की जगह 9000 अपॉन 2 रखा हमने, and tau value is 4500 divided by A to the whole square. So 9000 by 2 means 4500 divided by A plus minus 4500 divided by A whole square plus 4500 divided by A to the whole square. अभी क्या करेंगे, 4500 बाई ए का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4500 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा. अगर हमने इस तरह से कॉमन लिया, होल स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट के बाहर आके ये 4500 डिवाइडेड बाई स्क्वायर को कॉमन लिया, बाहर रूट क्या आया तो 4500 डिवाइडेड बाई ए हुआ, तो रिमेनिंग टर्म विल बी 1 प्लस 1. नाउ consider 4500 by a as common. It becomes 1 plus minus under root 2. Means sigma 1 value is 4500, 1 plus 1.414 divided by a, and sigma 2 value is 4500, 1 minus 1.414 divided by a. Sigma 1 value becomes 10863 divided by a, and sigma 2 value is minus 1863 divided by a. Now you have to calculate diameter from maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory formula for two stresses sigma 1 sigma 2. In previous problem there are three principal stresses were given to you, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3. उसके लिए अलग प्रोसीजर हमने देखा था. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या है दो स्ट्रेस के लिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा 1 इज 10863 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 माइनस 1863 divided by equal to SYT 225 divided by 3. It becomes 10863 minus minus plus 1863 12726 12726. It becomes 12726 divided by A is equal to 225 by 3. A becomes 3 into 12726 divided by 225. Then what will be the value? 169.68. 169.68 is the area, and all of you know
area formula for area is पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, बोल्ट के का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, इज इक्वल टू 169.68। तो डायमीटर विल बिकम 4 इंटू 169.68 डिवाइडेड बाई पाई अंडर रूट। तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 14.70 mm। 14.70 mm is the diameter from the maximum shear stress theory. Now come to next question, question number 5। ये सभी प्रॉब्लम से डिफरेंट है। In this problem, sigma x and sigma y is given to you. Sigma x value is 60 MPa and sigma y value is 45 MPa and tau value is 30 MPa. You have to calculate factor of safety here. If it is made up of C45 steel having XY yield stress as means SYT is given to you. Yield stress means SYT 353 MPa. And 1 by m is Poisson's ratio. 1 by m is Poisson's ratio is 0.3. With the help of these three theory, you have to calculate factor of safety. Now see, first of all calculate sigma 1, 2. What is the formula? Sigma x plus sigma y by 2 plus minus under root sigma x minus sigma y upon 2 whole square plus tau xy square. So sigma x plus sigma y by 2 60 plus 45 divided by 2 plus minus 60 minus 45 divided by 2 to the whole square plus tau value is 30 square. It becomes 52.5 plus minus under root. After solving this it becomes 31.62. Then sigma 1 value is 52.5 plus 31.62 क्या आ जाएगा ये 84.12 MPa and similarly sigma 2 becomes 52.5 minus 31.62 20.88 MPa 20.88 MPa. Now with the help of these three theory you have to calculate factor of safety. First theory is maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. What is the formula for maximum shear stress theory? It is sigma 1 minus sigma 2 equal to SYT upon factor of safety. सिग्मा 1 की वैल्यू क्या मिली है मुझे 84.12 और सिग्मा 2 की वैल्यू है 20.88 एंड SYT वैल्यू इज 353 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द होल स्क्वायर। कैलसी पे टाइप करेंगे तो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, अदरवाइज फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बिकम 353 डिवाइडेड बाय, और कैलसी पे जब भी टाइप करेंगे तो क्लियर करके ओल्ड वैल्यू को क्लियर करके कैलसी पे टाइप करना है। क्या आ जाएगा ये 353 under root 84.12 minus 20.88. It becomes 353 divided by 84.12 minus 20.88 square root. One minute. Directly you may evaluate this value. Factor of safety becomes 353 divided by
under root 84.12 minus 20.88 is 84.12 minus 20.88 square root इसकी वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी हमें 5.58. Now second theory is distortion energy theory. Distortion energy theory, sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 is equal to SYT upon factor of safety to the whole square. Sigma 1 square is 84.12 square, sigma 2 is 20.88 square, sigma 1 value is 84.12, sorry यहाँ square नहीं है, SYT upon factor of safety. So directly you may evaluate from here factor of safety equal to 353 divided by 84.12 minus 20.88. Sorry. डायरेक्टली यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते 353 डिवाइडेड बाई ये इधर आ जाएगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेफ्ट साइड चला जाएगा. 34.12 20.88 is equal to SYT value is 353 upon factor of safety to the whole square. Then factor of safety becomes 353 divided by under root 84.12 square plus 20.88 square minus 84.12 into 20.88. After solving, it becomes 4.65. Now third theory is maximum principal strain theory. In this problem, third theory maximum principal strain theory से factor of safety calculate करना है. तो maximum principal strain theory, maximum principal strain theory, sigma 1 minus mu sigma 2 is equal to SYT upon factor of safety. Sigma 1 value is 84.12. Poisson's ratio means 1 by m is given in your problem. Sigma 2 is 20.88. SYT is 353 and factor of safety you have to evaluate. Then factor of safety becomes 353 upon ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 84.12 minus 0.3 into 20.88. It becomes 4.53. ये पांचवा प्रॉब्लम था, थोड़ा डिफरेंट था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था प्रॉब्लम में, इसलिए इसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था. सिग्मा 1 टू प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला आल्सो. तीन टाइप के प्रॉब्लम हमने देखे हैं. जब बोल्ट का प्रॉब्लम रहे पुल का, पुल अप्लाइड एंड शियर फोर्स, थर्ड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और सेकंड देखा था हमने बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दिया रहे प्रॉब्लम में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9 मार्क्स के लिए in SPPU, in solid mechanics or in solid mechanics of for mechanical branch. Now come to question number 6. Here question number 6, bending moment of 20 kilonewton meter. Bending moment is 20 kilonewton meter, means 20 into 10 raised to 6 Newton mm. Torque 10 kilonewton meter, means 10 multiplied by 10 raised to 6 Newton mm. In this problem some one line is missing. The stress at elastic limit, the stress at elastic limit is 210 MPa and Poisson's ratio equal to 0.3
एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2.5। ये दिया है, ये मिसिंग है इस लाइन इस क्वेश्चन में। तो सिग्मा 1 2 के लिए फॉर्मूला होगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब m प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 16 upon pi d cube. Substitute instead of m, you will substitute 20 into 10 raised to 6. Here square है तो 20 into 10 raised to 6 का स्क्वायर और टॉर्क 10 into 10 raised to 6 का स्क्वायर। क्या आएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब। कॉमन क्या लेंगे 10 raised to 6, क्योंकि 10 raised to 6 का स्क्वायर दोनों में भी है, रूट के बाहर आएगा तो 10 raised to 6 होने वाला है। तो फाइनली कॉमन लेंगे 10 raised to 6, तो ये आएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 6 अपॉन पाई डी क्यूब 20 प्लस माइनस 22.36। तो 16 अपॉन पाई, this value becomes 5.09 into 10 raised to 6, 20 plus 22.36 divided by d cube, this will be sigma 1। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये 215.61 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब। और दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया 5.09 इंटू 10 raised to 6 20 माइनस 22.36 डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 12.01 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम फर्स्ट इज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से सॉल्व करना है। क्या है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द होल स्क्वायर। देन हियर सिग्मा 1 वैल्यू इज हियर 215.61 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई, सॉरी डी क्यूब है, यहाँ पे गलती से डी स्क्वायर लिखा है मैंने, हियर इट इज डी क्यूब। तो डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 इज माइनस 12.01 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब स्क्वायर माइनस 215.61 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब मल्टीप्लाई ये माइनस 12.01 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब इज इक्वल टू एस वाई टी। एस वाई टी वैल्यू इज स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट 210 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5, 210 डिवाइडेड बाई 2.5 स्क्वायर। यहाँ बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में। तो 10 raised to 6 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये भी मल्टीप्लाई होके 10 raised to 12 आ जाएगा। तो 10 raised to 6 का स्क्वायर 10 raised to 12 होता है, तो 10 raised to 12 हम कॉमन ले सकते, डिवाइडेड बाय डी क्यूब का स्क्वायर और डी क्यूब इंटू डी क्यूब डी raised to 6, डी क्यूब का स्क्वायर भी डी raised to 6 होता है, तो डी raised to 6 कॉमन ले लेंगे। तो क्या रहेगा अंदर 215.61 का स्क्वायर माइनस 12.01 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, हियर इट विल बी माइनस माइनस प्लस 215.61 इंटू 12.01 इज इक्वल टू 210 बाई 2.5 का स्क्वायर में 7056। After calculation of inside the bracket, it becomes 49221.388 divided by d raised to 6 is equal to 7056। तो d क्या आ जाएगा, d raised to 6 10 raised to 12 49221.388
डिवाइडेड बाय 7056। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10^12 49221.388 divided by 7056 raised to 1 by 6. Then you will get diameter value is 138.23 mm. Now come to second theory, maximum strain energy theory. कुछ नहीं करना है ज़्यादा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में यहाँ पे 2 म्यू एक्स्ट्रा आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द होल स्क्वायर। तो सिग्मा 1 स्क्वायर अगेन 215.61 into 10^6 upon d cube square, sigma 2 square minus 12.01 into 10^6 divided by d cube square minus 2 multiplied by Poisson's ratio, it is 0.3, it is 0.3, 215.61 into 10^6 divided by d cube minus 12.01 into 10^6 divided by d cube is equal to SYT again 210 डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर। तो डी क्यूब का स्क्वायर फिर से d⁻6 कॉमन लेंगे हम और 10^12 कॉमन आएगा। तो 215.61 स्क्वायर माइनस 12.01 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 215.61 माइनस 12.01 इज इक्वल टू 7056. Then after calculation of inside the bracket we will get 48185.60 divided by d⁻6 is equal to 7056. Now d⁻6 10^12 48185.60 upon 7056. तो d equal to 10^12 multiply by 48185.60 divided by 7056 raised to 1 by 6. Then d value becomes 137.74 mm. ये 137.74 mm डायमीटर की वैल्यू हो गई। नाउ 7th नंबर प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से थ्योरी से था, बस दोनों डिस्टॉर्शन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी में डिफरेंस ये स्ट्रेन एनर्जी में 2 म्यू एक्स्ट्रा आता है और डिस्टॉर्शन में 2 म्यू नहीं रहता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू 1 minute. Now a solid circular shaft subjected to bending moment of 45 kilonewton meter means m becomes 45 kilonewton meter, 45 multiplied by 10^6 Newton mm, and a torque of 15 kilonewton meter is 15 multiplied by 10^6 Newton mm. Design the diameter of the shaft, means you have to calculate diameter of the shaft. With the first stage mu is 0.25, stress at elastic limit it is 200 MPa and factor of safety is 2. You have to calculate the diameter, strain energy theory से calculate करना है, maximum shear stress theory से और maximum strain energy theory। तो maximum strain energy sorry
Actually, first maximum principal stress theory है. First is maximum principal stress theory. और अगर दोनों भी दिया रहे प्रॉब्लम में, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अगर एग्जाम में दिया रहे, तो एक मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से कैलकुलेट कर देना है, और सेकेंड अगर स्ट्रेन एनर्जी है में डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से कैलकुलेट कर देना अगर रहे तो. अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों भी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है यहाँ पे. तो स्ट्रेन एनर्जी नहीं रखना है यहाँ पे, यहाँ मिसिंग है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. फर्स्ट प्रॉब्लम में रख के सॉल्व करेंगे. अगर इनकेस रहे प्रॉब्लम में एग्जाम में स्ट्रेन एनर्जी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, तो एक डिस्टॉर्शन से सॉल्व करना है और एक शियर स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व करना है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व करना है. तो एम ओ टी गिवन है, म्यू पॉइजन्स रेशियो इज 0.25, एस वाई टी वैल्यू इज 200 MPa, factor of safety is 2. Now sigma 1 2 value is 16 upon again pi d cube m plus minus under root m square plus t square. 16 upon pi d cube is 5.09 upon d cube. M value is 45 into 10 raised to 6 plus minus 45 into 10 raised to 6 का स्क्वायर. टॉर्क की वैल्यू 15 into 10 raised to 6 का स्क्वायर. 5.09 into 10 raised to 6 divided by d cube 45 प्लस माइनस अंडर रूट 45 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. कैलसी पे अगर सॉल्व करते हैं हम इसको, तो 45 प्लस माइनस 47.43 divided by d cube. Then sorry, then our sigma 1 value will be 5.09, sigma 1 to 5.09 into 10 raised to 6, 45 sigma 1 sorry 45 plus 47.43 divided by d cube. After solving, sigma 1 becomes 470.46 into 10 raised to 6 divided by d cube, and sigma 2 5.09 into 10 raised to 6, 45 minus 47.43 divided by d cube means minus 12.36 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन डी क्यूब आ जाएगा सिग्मा 2. तो अभी तीन थेरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी. अगर दो स्ट्रेन एनर्जी थेरी है तो एक डिस्टॉर्शन से सॉल्व करना है और एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी से, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थेरी से सॉल्व करना है. अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी से सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थेरी sigma 1 equal to SYT upon factor of safety. Sigma 1 is 470.46 into 10 raised to 6 divided by d cube is equal to 200 by 2. Factor of safety is 2 दिया है प्रॉब्लम में. फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 2 दिया है और SYT 200 दिया है. तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, 470.46 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 200 रेज टू 1/3. तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 167.56 mm. नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो सिग्मा 1 वैल्यू इज 47 sorry into 10 raised to 6 minus sigma 2 is minus 12.36 into 10 raised to 6 divided by d cube is equal to 200 by 2.
तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 482.82 इंटू 10⁻6 divided by d cube equal to 100. तो d cube becomes 482.82 into 10⁻6 divided by 100. Then d equal to 482.82 into 10⁻6 divided by 100 raised to 1 by 3. Diameter value becomes 169.01 mm. Now third is maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory or shear strain energy theory. Maximum strain energy theory or shear strain energy theory. Sigma 1 square sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 is equal to SYT upon factor of safety to the whole square. सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, 470.46 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब का स्क्वायर. सिग्मा 2 की वैल्यू है -12.36 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई डी क्यूब टू द होल स्क्वायर. 2 multiplied by Poisson's ratio. Your Poisson's ratio value is 0.25 into 470.46 into 10⁻6 multiply by -12.36 into 10⁻6 divided by d cube. यहाँ भी है divided by d cube is equal to SYT means 200 by 2 to the whole square. It becomes 10⁻12. फिर से कॉमन लेंगे, d क्यूब का स्क्वायर d⁻6 कॉमन आएगा. तो रिमेनिंग टर्म इज 470.46 स्क्वायर माइनस 12.36 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.25 470.46 इंटू माइनस 12.36 is equal to 100 square. After solving, d⁻6 is equal to 224.39 into 10⁻3 multiply by 10⁻12 upon 100 square. Then d becomes 224.39 into 10⁻3 into 10⁻12 upon 100 square raised to 1 by 6. Then your diameter value becomes 167.94 mm with the help of maximum strain energy theory. और जब भी प्रॉब्लम में दो स्ट्रेन एनर्जी है तो एक डिस्टॉर्शन से करना है और एक शियर से करना है. इसमें मैंने एक मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी से सॉल्व किया. नाउ 8 नंबर, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. तो सी एन एक्सियल पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन. अभी एक्सियल पुल 25 किलो न्यूटन है, शियर फोर्स 20 किलो न्यूटन है. तो पी की वैल्यू गिवन है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 न्यूटन. किलो मीन्स 10⁻3 25,000 न्यूटन. शियर फोर्स की वैल्यू 20 किलो न्यूटन मीन्स 20 इंटू 10⁻3 20,000 न्यूटन. SYT elastic limit of the bar material is 250 MPa and Poisson's ratio 0.3. diameter is given to you. diameter की वैल्यू कितनी है 20 mm. area of cross section pi by 4 d square. pi by 4 into 20 square it becomes 100 pi 314.5 mm square. ये एरिया की वैल्यू होगी. तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला है P अपॉन E. P 25,000, एरिया 314.5 और सिग्मा वैल्यू इज 79.57 MPa. टाउ इज shear force upon area 20,000
डिवाइडेड बाय एरिया 314.5। टाउ की वैल्यू आ जाएगी 63.67 MPa। नाउ सिग्मा 1 2 के लिए क्या फॉर्मूला है जब सिग्मा और टाउ रहे पुल के प्रॉब्लम में, तो सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो सिग्मा 1 2 सिग्मा अपॉन 2 79.57 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 79.57 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। टाउ की वैल्यू है 63.67 का स्क्वायर, तो 79.57 बाई 2 इट बिकम 39.78 प्लस माइनस 74.94। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी 39.78 प्लस 74.94 और सिग्मा 2 की वैल्यू हो गई 39.78 माइनस 74.94। तो सिग्मा 1 114.72 MPa और sigma 2 minus 35.16 MPa. With the help of these four theory, you have to calculate factor of safety. First theory is maximum shear stress theory. ये sigma 1 sigma 2 नेक्स्ट पेज के लिए लर्न रखना है, लिख के रखना है जब नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूँगा। तो मैक्सिमम shear stress theory फर्स्ट, मैक्सिमम shear stress theory का के लिए sigma 1 minus sigma 2 equal to SYT upon factor of safety. Sigma 1 is 114.72, sigma 2 is minus 35.16, SYT value is 250 MPa, it is given in your problem, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा यहाँ से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स 250 डिवाइडेड बाय 114.72 प्लस 35.16, इसकी वैल्यू आ गई 1.66। नेक्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और फोर्थ है shear strain energy. shear strain energy मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में के लिए हमें क्या करना है, 2 म्यू लेना है और shear strain एनर्जी थ्योरी में डिस्टॉर्शन से एक दो एनर्जी है तो एक डिस्टॉर्शन से सॉल्व करना है और एक नॉर्मल से सॉल्व करना है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होना चाहिए, यहाँ एनर्जी को कट कर देंगे। तो सेकंड है हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए फॉर्मूला है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 is equal to SYT upon factor of safety to the whole square. Sigma 1 means 114.72 square, sigma 2 means minus 35.16 square, 2 into Poisson's ratio 0.3, 114.72 minus 35.16 is equal to SYT 250 upon factor of safety to the whole square. इसको लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.81 इंटू 10⁻³ 250 स्क्वायर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स 250 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16.81 इंटू 10⁻³ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हो गई 1.92। नाउ कम टू थर्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा 1 114.72 माइनस 0.3 इंटू माइनस 35.16 इज इक्वल टू SYT 250 divided by factor of safety. The factor of safety becomes 250 divided by 114.72
-0.3 इंटू -35.16, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 2। नाउ कम टू लास्ट थ्योरी इसका मैक्सिमम और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। शियर स्ट्रेन एनर्जी को डिस्टॉर्शन एनर्जी बोलते, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी स्टार्टिंग में मैंने लिखा भी था फर्स्ट लेक्चर में, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर पार्ट 1 में हमने लिख के दिया था सभी थ्योरी के बारे में। उससे ईयर इसमें मैंने सभी थ्योरी लिख के दिया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को क्या नेमिंग बोलते, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होता है, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी बोलते हैं, सब लिख के दिया है हमने। तो शियर स्ट्रेन एनर्जी रहेगा तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को ही शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हम बोलते हैं। तो अभी लास्ट है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए फॉर्मूला है हमारा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो क्या आ जाएगा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द होल स्क्वायर 114.72 स्क्वायर प्लस माइनस 35.16 स्क्वायर माइनस 114.72 minus 35.16 is equal to 250 divided by factor of safety to the whole square, means 250 divided by factor of safety to the whole square is equal to 18.43 into 10 raised to 3. Then 250 divided by factor of safety equal to under root 18.43 into 10 raised to 3. Factor of safety equal to 250 divided by under root 18.43 into 10 raised to 3. Your factor of safety value becomes 1.84. After calculation you will get 1.84. Now next question is axial pull of 25 kilonewton, shear force of 20 kilonewton. I think this question is repeated. Diameter is also 20 mm. Diameter is 20 mm and shear stress is 250 MPa. यहाँ भी 250 था। हाँ, ये 8 और 9 क्वेश्चन नंबर रिपीटेड है। 10th नंबर क्वेश्चन हम होमवर्क में रख सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस की तरह। अगेन पुल दिया है और शेयर फोर्स दिया है और डायमीटर पूछ, ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए इसके बेसिस पे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से आप सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मीन्स इसमें 2 म्यू आएगा, तो ये सॉल्व कर सकते हैं एज अ होमवर्क, सॉल्व करना है इसको। थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर कंप्लीट हुआ 2 पार्ट में। पार्ट 1 में 3 प्रॉब्लम लिया था हमने और पार्ट 2 में अभी कंप्लीट किया। थैंक यू ऑल।